Hello everyone, welcome to Target IES. I am Chandan Sharma and I have secured All India Rank 3 in Engineering Services Examination 2019. So from today on we are going to start simple mechanism of theory of machine. So theory of machine के बारे में we have already talked about the syllabus, and in the syllabus what are the topics through which topic numericals will come and through which topic theoretical part will come and which topic is most important. We have already talked about that, right? So let's start with the first topic of the theory of machine, that is simple mechanism. So in simple mechanism, initially let's start with the means everything has an element, right? अगर एक machine है, if there is a bicycle, right? Sorry, there is a bicycle. So it have different elements, right? Which have relative motion. So first one is the tires, then this tire, then we have pedal here, then chain system is there, right? So means this is a very simple system. अगर इससे थोड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टम जाएंगे so we can take बाइक, उससे थोड़ा कॉम्प्लेक्स जाएंगे we can take कार, उससे थोड़ा कॉम्प्लेक्स जाएंगे we can take ट्रेन, उससे थोड़ा कॉम्प्लेक्स जाएंगे we can take एयरप्लेन्स, एंड उससे थोड़ा कॉम्प्लेक्स जाएंगे तो वी कैन टेक स्पेसशिप्स, ओके, या फिर शिप्स हमारे जो नॉर्मल है, या फिर सबमरीन्स देख सकते हैं, ओके. सो दीज आर द डिफरेंट एलिमेंट्स बट these are the complex network of very small element. So हम बोलते हैं ना कि हमारी बॉडी जो बनी है वो सेल से बनी है, that is the elemental part. So every machine is having an elemental part. So how we define that? The basic structure, if you will say how we define the basic structure, so that is known as link, kinematic link. Remember, just not the link, kinematic link, or we can say element, kinematic element. So what is kinematic link or kinematic element? Every part of machine which is having, just focus on my word, every part of the machine which is having some relative motion. So relative motion is compulsory or not? Yeah, it is compulsory. Some relative motion with respect to what? With respect to some other part, right? So like we can take an example of 4-bar mechanism. So अगर हम इसको फिक्स कर दें, so this is case 1 and we can say this is case 2. So there is a relative motion here, angle, this angle gets changed, this angle changed, this angle changed, and this angle changed. So there is a relative motion between link 1, link 2, link 3 and link 4. So इसलिए हम हर एक जो है ये जो मेंबर है 1, 2, 3 and 4, इसको हम लिंक के एलिमेंट कहते हैं. So every part of the machine which is having some relative motion with respect to some other part will be known as kinematic link or element. It is necessary for the link to be resistant. If link, so link के लिए क्या क्या होना चाहिए? First, relative motion, and second is resistant body. What does it mean by resistant body? Resistant body means a body which can transfer a force. How? Let's see. There is a two bodies, okay. Let's say first one is the shape of the both bodies are same. First one is made up of metal and second one is made up of rubber, okay. So if I apply a force here, okay, the metal will directly transfer that force, or if I apply a force here, the metal will transfer the force. But in the rubber case, if I apply a force here, it will get squeezed, right? Its shape gets changed. तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा यहाँ पर, right? If I apply a force on this side, so it will, or this side, so its shape will get changed like this, right? So it depends. दोनों का शेप सेम है, दोनों पे फोर्स सेम लग रहा है, बट विच बॉडी कैन ट्रांसफर द फोर्स? बिकॉज इन मशीन one element transfer the force to the other element, then that element transfer the force to the third element. So यही तो काम है ना. हम साइकिल यूज करते हैं, we pedal the cycle and because of that pedaling the wheel rotates and उसके कारण साइकिल चलती है, right? So resistant body is which can transfer the
motion or which is capable of transmitting or transferring motion, or we can say ultimately power, because power ही तो ट्रांसफर करना है हमें, right, from one element to other element. So a link should be a link which is having a relative motion with the other link and is a resistant body. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट. मैंने आपको एग्जांपल दे दिया. नाउ ये तो बेसिक डेफिनेशन हो गया लिंक का. ओके, सो इसके अलावा लिंक के लिए और कोई कंडीशन चाहिए? नहीं. सो अब देखते हैं हम टाइप्स. फर्स्ट वन इज रिजिड लिंक. rigid link, as we have already discussed, takes an example of metal. So here deformation, as name suggests, deformation is zero, or we can say negligible, और होगा भी तो माइक्रोस्कोपिक होगा. so we'll take it as a negligible. so इसका एग्जाम्पल कैसे ले सकते हैं? हम पिस्टन सिलेंडर्स ले सकते हैं. पिस्टन सिलेंडर इंजन, राइट, पिस्टन सिलेंडर हो गया. फिर उसके बाद और कौन सा एग्जांपल ले सकते हैं? हम क्रैंक शाफ्ट ले सकते हैं. ओके, अगर हम इसके आगे कुछ और आए सो हम कैसे लिखते हैं? या वी कैन टेक एक्सेल एंड व्हील. देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन एक्सेल और वी कैन से बेयरिंग, व्हील एंड बेयरिंग और शाफ्ट, जो तीनों का मिलके आएगा तो वहाँ पर भी रिलेटिव मोशन होता है, बिकॉज बेयरिंग इज यूज फॉर द रिलेटिव मोशन. सो देर आर इनफाइनाइट एग्जाम्पल्स यू कैन से. बट यहाँ पर डिफॉर्मेशन क्या है? डिफॉर्मेशन इज जीरो. सो रिजिड लिंक के लिए फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है? डिफॉर्मेशन इज जीरो. सेकेंड वन इज फ्लेक्सिबल लिंक. फ्लेक्सिबल लिंक, सो हेयर डिफॉर्मेशन is permitted but in a permissible limit. इसका एग्जाम्पल, if you have seen our chain drive system, then chain is a flexible link, right? क्योंकि अगर चेन कैसे एक लिंक से बना होता है इस टाइप के, right, if you have and a bush is there, so but there is a relative motion this and this link, but as a whole अगर मैं chain drive system देखूं, it is on here two gears we can see or sprocket we can say. so इस टाइप से होता है, and there chain it is having motion in this direction also because of its flexibility. belt is also used to transfer the power in floor mill, right, that is also example of this. somewhere rope is also used, so that is an example of flexible link. but वहाँ पर डिफॉर्मेशन हो रहा है अप टू सर्टन लिमिट, बट वहाँ पर ट्रांसफर ऑफ पावर भी हो रहा है, so इसलिए हम उसको फ्लेक्सिबल लिंक कहते हैं. थर्ड वन इज फ्लूइड लिंक. so fluid link, when power is transmitted, power is transmitted because of fluid process, fluid pressure, sorry, not process, fluid pressure. so एक बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल है लिफ्ट का. इफ़ यू सीइंग जो हाइड्रोलिक लिफ्ट होते हैं, ओके, यहाँ पे पैडल होता है जो यहाँ पर हम फोर्स लगाते हैं, और यहाँ पर इसका जो रेशियो होता है, यहाँ पर गाड़ी होती है, एंड अ पर्सन कैन लिफ्ट दिस, राइट. यहाँ पर कैसे? इसको हाइड्रोलिक लिफ्ट बोलते हैं. सो यू कैन रीड दिस, राइट. ये तो पूरा फ्लूइड है ये वाला सिस्टम. यहाँ पर फोर्स लग रहा है एंड यहाँ पर ये लिफ्ट हो रहा है, तो हाइड्रोलिक लिफ्ट. सेम एग्जांपल हाइड्रोलिक ब्रेक्स, रैम्स भी होते हैं, हाइड्रोलिक रैम्स भी होते हैं. सो यहाँ पर यूज होता है हाइड्रोलिक प्रेशर. ओके, तो ये कुछ बेसिस ऑन द व्हाट, ये जो टाइप्स है किस बेसिस पे हैं? ये टाइप्स हैं लिंक के बेसिस पे. जो लिंक है ये फ्लेक्सिबल है कि नहीं है उसके बेसिस पे, राइट. सो
हम और भी टाइप के यहाँ पर देखेंगे लिंक्स, तो देखते हैं। ये तो हो गया डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिंक, राइट। नाउ द सेकंड इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेटिव मोशन। डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेटिव मोशन। So for a relative motion system is have minimum 2 links are required, तभी तो होगा minimum 2 links, तभी तो relative motion होगा, नहीं तो कैसे होगा। So types of relative motion अगर हम देखें, so first one is completely constrained। रिलेटिव मोशन होना चाहिए, राइट, बट रिलेटिव मोशन इज कंप्लीटली कंस्ट्रेंट और सेल्फ कंस्ट्रेंट वी कैन से, जो फर्स्ट एग्जांपल है। तो देखते हैं इसमें क्या होता है। लेट्स से ओके, देयर इज अ, इस टाइप का सिस्टम है, ओके, इस टाइप का सिस्टम है। ओके, एंड दिस इज अ होल, राइट, ये एक ब्लॉक है जिसमें एक होल है, और यहाँ पर आपने एक शाफ्ट यहाँ पर एंटर कर दिया है। ओके, वो इस साइड से ऐसे बाहर है। नाउ इफ यू आर एबल टू इमेजिन, देन ये जो शाफ्ट है इसका मोशन सिर्फ इस लाइन के एक्सिस के अलॉन्ग है, इस लाइन के अलॉन्ग कोई मोशन नहीं है, राइट। तो अगर मैं इसका एक सिंपल डायग्राम बनाऊं इस टाइप का, सो इट्स मोशन इज ओनली इन दिस डायरेक्शन। ओके, वर्टिकल मोशन नहीं है, इट कैन नॉट रोटेट, तो इसका जो रोटेशनल मोशन है किसी भी डायरेक्शन में नहीं है। सो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक सिर्फ सिंगल मोशन है। सो आई कैन से देयर इज ओनली सिंगल इनपुट एंड फॉर दैट ओनली सिंगल आउटपुट, राइट। अगर हम इसको इस साइड से पुश करेंगे तो इस साइड जाएगा, इधर से पुश करेंगे तो इधर जाएगा, बस सिंपल। सो ये एक एग्जांपल है। अब आप बोलेंगे सर क्या ये शाफ्ट के केस में नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। सो उसमें क्या होता है, ओके, नाउ वी आर टेकिंग द एग्जांपल ऑफ शाफ्ट दैट इज सर्कुलर। ओके, सो यहाँ पर इसका जो क्रॉस सेक्शन है सर्कुलर है, बट यहाँ पर क्या होता है, हम यहाँ पर बुश लगा देते हैं। ओके, सो इसके कारण क्या होगा, इन दिस शाफ्ट कैन ओनली रोटेट, क्योंकि यहाँ पर कॉलर प्रोवाइड है, यहाँ पर कॉलर लग गया, यहाँ पे कॉलर लग गया। सो जो ये वाला मोशन है ये नहीं होगा, ये सिर्फ रोटेट होगा। ओके, वर्टिकल मोशन तो हो ही नहीं सकता है, और हॉरिजॉन्टल मोशन और एक्शियल मोशन नहीं हो सकता, सो इट कैन ओनली रोटेट। सो यहाँ पर जो मोशन है वो क्या है, एक्शियल मोशन, राइट, एक्शियल डिस्प्लेसमेंट यू कैन से। यहाँ पर रोटेशन है जो रिलेटिव मोशन है। सो देख रहे हैं ना, यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है कॉलर है, that is on the shaft. So this one is the link 1, these two make a link 2। यहाँ पर ये link 1 है, ये link 2 है। So there is always a link, two link, तभी तो relative motion होगा। So relative motion between यहाँ पर collar and shaft is 0, so it will act as link 1। तो ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि if we say completely constraint or self constraint, so there is only one output for a single input, and जो मोशन है वो कंस्ट्रेंट है, डिफाइंड मोशन है, इसके अलावा और कोई मोशन हो ही नहीं सकता है। नाउ जब हम सेकेंड एंड थर्ड टाइप पढ़ेंगे तो यू विल गेट मोर अंडरस्टैंडिंग। ओके, नाउ सक्सेसफुली कंस्ट्रेंड मोशन, लेट्स सी सक्सेसफुली कंस्ट्रेंड। ओके, सो फॉर अ सिंगल इनपुट, इन दिस केस फॉर अ सिंगल इनपुट there is single output or desired output is controlled by another link. For a single input, single output or desired, we can say desired output is controlled by external, is controlled externally, we can say, okay, or from surrounding which is not externally, which is not a part of system,
यहाँ पर जो सिस्टम है वो तो दोनों लिंक ही है ना, बस उसके अलावा कुछ नहीं है। अब जैसे इसमें आपको दिक्कत हो रही है, बट यहाँ पर एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। लेट्स से हमारा दिस इज आवर पिस्टन, सॉरी सिलेंडर, यहाँ पर ये हमारा हमारा पिस्टन आ जाता है, राइट, दिस इज आवर पिस्टन। इफ यू सी दिस पिस्टन मूव इन दिस डायरेक्शन, बट इट कैन ऑल्सो रोटेट, राइट, दिस पिस्टन अपनी एक्सिस के अराउंड रोटेट भी कर सकता है, पर वो रोटेट करता है क्या, जब उसका मोशन होता है एट दैट टाइम डज इट रोटेट, नहीं, वाई, बिकॉज जो ये वाला लिंक है कनेक्टिंग रॉड वो उसको रोटेट नहीं होने देता है, राइट। सो दिस इज लिंक 3, दिस इज लिंक 2 एंड दिस इज लिंक 1, हियर नो रोटेशनल मोशन, वाई, नो रोटेशनल मोशन because here relative motion between cylinder and piston is constrained by connecting rod which is not a part of system। so यहाँ पर सिस्टम जो है वो सिर्फ सिलेंडर प्लस पिस्टन है जो हम सिस्टम ले रहे हैं, कनेक्टिंग रॉड इज एक्सटर्नल पार्ट, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं कि हमने इसको कंस्ट्रेन किया और सक्सेसफुली कंस्ट्रेन किया है, राइट। एक और एग्जांपल देते हैं आपको। अगर मैंने आपको एमडी में पढ़ाया दैट इज फुट बेयरिंग, okay, foot bearing, in foot bearing if you not control there is motion is possible in this direction and it can also rotate, but to avoid this vertical motion, इस motion को avoid करने के लिए यहाँ पर हम force लगाते हैं by some external thing, okay, force is due to किसी चीज़ के कारण हो सकता है, किसी चीज़ के वेट के कारण हो सकता है, आपने एक्सटर्नली लगाया, सो इट विल ओनली रोटेट। सो यहाँ पर सिस्टम क्या है हमारा, ये शाफ्ट और ये सपोर्ट बेयरिंग या स्टेप बेयरिंग, सो इसको हम बोलते हैं फुट स्टेप बेयरिंग। तो सिमिलरली थर्ड एक है सिरिंज, सिरिंज आपने देखा है, सिरिंज, सिरिंज में जो ये वाला पार्ट है दिस इज सिलेंडर और यहाँ से आगे इंजेक्शन लगा होता है एंड दिस इज योर पिस्टन, राइट, बट ये पिस्टन रोटेट भी कर सकता है, राइट, और ये इस मोशन में भी जाता है, बट डज इट रोटेट, नो, वाई, बिकॉज जो हम फोर्स लगाते हैं यहाँ पर वो उसको कंट्रोल करता है, उसको रोटेशन को, तो आप यहाँ पर रोटेशन नहीं होने दे रहे हैं, सो बिकॉज ऑफ दैट हम इसको बोलते हैं कंप्लीटली कंस्ट्रेंट। बट ये सेल्फ कंस्ट्रेंट है क्या, नहीं, इट इज एक्सटर्नली कंस्ट्रेंट, सो इसलिए हम इसको जो नाम है थोड़ा डिफरेंट है। नाउ द थर्ड टाइप इज अनकंस्ट्रेंट, अनकंस्ट्रेंट मोशन। So when there are more than one relative motion, when there are more than one relative motion possible between two links in a system, इसका तो बेस्ट एग्जांपल है, क्या ही देना है, शाफ्ट, ओके, यहाँ पर कितने पॉसिबल हैं, फर्स्ट दिस मोशन एंड द सेकंड वन इज रोटेशन। सो अगर हम उसको कंस्ट्रेंट नहीं करेंगे तो ये अनकंस्ट्रेंट मोशन है। तो ये कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ, एक तो मैंने बता दिया टाइप्स ऑफ लिंक एंड ये टाइप्स ऑफ मोशंस हैं। इसके बाद हम काइनेमेटिक पेयर और जॉइंट के बारे में पढ़ेंगे, ओके। मैंने आपको क्यों बताया, बिकॉज हियर लिंक, टाइप्स ऑफ लिंक एंड रिलेटिव मोशन बिटवीन देम, इसके बेसिस पे, इन दोनों के बेसिस पे हम काइनेमेटिक पेयर और जॉइंट को डिफाइन करते हैं, ओके। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं, ओके। सो लेट्स फर्स्ट डिफाइन व्हाट इज काइनेमेटिक पेयर और जॉइंट, वी कैन से काइनेमेटिक जॉइंट, ओके। सो एनी कनेक्शन बिटवीन टू लिंक इज ऑलवेज अ जॉइंट और अ पेयर। तो अगर कोई भी दो लिंक है उनके बीच में कोई भी कनेक्शन है 1 and 2 के बीच में, so it is always a joint। so any connection between two link is known as joint, simple joint, but this pair or joint is only be kinematic pair or kinematic joint if relative motion between links is a constrained motion,
कंस्ट्रेंट मोशन मतलब पता है ना कि फॉर वन इनपुट देर इज ओनली वन आउटपुट, और दोनों के बीच का मोशन डिफाइन है कि अगर हम फर्स्ट लिंक को इस तरीके से मूव करेंगे तो सेकंड लिंक इस तरीके से मूव होगा, और हम फर्स्ट लिंक को मूव करेंगे तो दोनों के बीच का जो रिलेटिव मोशन है वो एक ही टाइप का होगा। तो इसको काइनेमेटिक पेयर आप समझ गए कि वहाँ पर कंस्ट्रेंट मोशन होना चाहिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कंस्ट्रेंट मोशन। जॉइंट तो कितने भी हो सकते हैं, दिस इज एन ऑल्सो अनकंस्ट्रेंट मोशन वाला, ये भी एक टाइप का जॉइंट है, बट यहाँ पर अनकंस्ट्रेंट मोशन है, तो इस पेयर को हम काइनेमेटिक पेयर कहेंगे नहीं। ओके, सो काइनेमेटिक पेयर जॉइंट। अब इसकी क्लासिफिकेशन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इसकी क्लासिफिकेशन काफ़ी सारे बेसिस पे होती है। सो लेट्स से क्लासिफिकेशन, ओके, अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ रिलेटिव मोशन, अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ रिलेटिव मोशन। मैंने आपको कहा था रिलेटिव मोशन पे होता है। सो फर्स्ट इज टर्निंग पेयर, टर्निंग पेयर, और इसको और क्या कह सकते हैं, रिवॉल्यूट पेयर, और पिन जॉइंट भी कहते हैं। ओके, सो यहां पर जो मोशन है रिलेटिव मोशन वो प्योर टर्निंग है, प्योर टर्निंग, सॉरी यहाँ पर प्योर लिख सकते हैं, प्योर टर्निंग। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, ये एक लिंक है और एक ये लिंक है। ओके, ऐसा कोई लिंक है और यहाँ पर हमने एक पिन लगा दिया। ओके, सो इनके बीच का जो मोशन है वो टर्निंग, ये टर्निंग पेयर हो गया, ठीक है। और वी कैन से रिवॉल्यूट पेयर, ये इस टाइप से मूव करेगा और ये इस टाइप से मूव करेगा। अगर हमने इसको पकड़ लिया तो इसको अगर आप इस तरीके से खींचेंगे तो ये वाला भी नीचे आएगा, लाइक अगर इसको हमने यहाँ पर फिक्स कर दिया मान लो, ओके, एंड यू आर पुलिंग इट हेयर, तो ये कैसे हो जाएगा, ये केस 1 है। सेकेंड केस में कैसे हो जाएगा, ये कुछ ऐसा आ जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, राइट। बट ऐसा नहीं होगा कि इसको हम आगे खींच रहे हैं तो ये ऐसा हो जाएगा, नहीं, दिस इज नॉट पॉसिबल, ओनली दिस केस इज पॉसिबल। सो इसलिए यहाँ पर जो मोशन है कंस्ट्रेंट मोशन है। सेकेंड टाइप इज स्लाइडिंग पेयर, इसको हम प्रिज्मेटिक भी बोलते हैं, याद रखिएगा, ये नाम काफ़ी बार पूछा, यूज़ किया जा चुका है, प्रिज्मेटिक पेयर। ओके, सो यहाँ पर रिलेटिव मोशन इज प्योर स्लाइडिंग। इसका एग्जांपल कोई दे सकता है, बहुत इजी है, पिस्टन एंड सिलेंडर। ओके, थर्ड वन इज रोलिंग पेयर। रोलिंग पेयर के लिए बेस्ट एग्जांपल है व्हेन रिलेटिव मोशन इज प्योर रोलिंग। एंड प्योर रोलिंग के लिए पता है हमें कि अगर कोई एक बॉडी है वो कहीं पर भी रोल कर रही है, सॉरी, वो रोल कर रही है, ओके, यहाँ पर v वेलोसिटी से और ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है, तो v इक्वल्स टू आर ओमेगा मैं ले सकता हूँ, राइट, दिस इज पॉसिबल। सो रोटेशन इज इंडिपेंडेंट। यहाँ पर अगर ये चीज़ आगे बढ़ रहा है, अगर रोटेशन हो रहा है तो ये अपने आप आगे बढ़ेगा, राइट, क्योंकि अगर प्योर रोटेशन में ये तो आप नहीं वो कोई बोल सकता कि सर यहाँ पर तो रोटेशन भी हो रहा है और ये आगे भी मूव कर रहा है। यहाँ पर दो मोशन हो गए सर, एक लीनियर मोशन हो गया, एक रोटेशनल मोशन हो गया। नहीं, यहाँ पर जो लीनियर मोशन है वो डिपेंडेंट है रोटेशनल मोशन पे। अगर बॉडी रोटेट ही नहीं होगी तो आगे नहीं जाएगी, तो लीनियर मोशन भी नहीं होगा। सो यहाँ पर रोटेशन इज इंडिपेंडेंट एंड ट्रांसलेशन इज डिपेंडेंट ऑन रोटेशन। सो एक ही है यहाँ पर मोशन, सो इसलिए हम इसको काइनेमेटिक पेयर कहते हैं। ओके, फोर्थ टाइप इज, इसका एक और एग्जांपल है बॉल बेयरिंग सिस्टम, हम उसको प्योर रोलिंग सिस्टम मानते हैं, ठीक है। फोर्थ जो टाइप आएगा यहाँ पर स्क्रू पेयर, ठीक है। स्क्रू पेयर व्हेन रिलेटिव मोशन इज ओवर द थ्रेड, स्क्रू पेयर में रिलेटिव मोशन डिफाइंड ओवर द थ्रेड, राइट। हम थ्रेड को रोटेट करते हैं और वो लीनियर मोशन भी होता है, बट यहाँ पर रोटेशन इज द प्राइमरी मोशन एंड रिलेटिव जो लीनियर मोशन इज द सेकेंडरी मोशन। सो ओनली एक ही यहाँ पर है जो रिलेटिव मोशन है, राइट। तो इंडिपेंडेंट मोशन कितने हैं, एक ही है, बाकी रिलेटिव मोशन कितने भी हो सकते हैं। नाउ द लास्ट वन इज स्फेरिकल पेयर, स्फेरिकल पेयर, और इसको हम बॉल एंड सॉकेट जॉइंट भी कहते हैं।
ओके, सो ये कैसा होता है, ये कुछ इस टाइप का होता है, जस्ट वेट, अरे यार, दिस इज आवर बॉल, ओके, और उसका जो सॉकेट होता है वो भी कुछ इसी टाइप का होता है, और यहाँ पर कॉन्टैक्ट पॉइंट होता है, ओके, दिस वन इज आवर लिंक वन, दिस वन इज सॉकेट, सेकेंड वन इज सॉकेट, फर्स्ट वन इज बॉल, ओके। और यहाँ पर जो रिलेटिंग मोशन होता है वो 3D रोटेशनल होता है, 3D रोटेशन होता है। अब यहाँ पर जो रिलेटिव मोशन है, जब मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि सबकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है, पर इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 नहीं होती, ज़्यादा होती है, स्टिल वी काउंट इट एज अ काइनेमेटिक चेन, और सॉरी काइनेमेटिक पेयर। तो ये एक यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, एक्सेप्शन है, यू कैन से, बट स्टिल यहाँ पर जो मोशन है वो डिफाइंड मोशन है। अगर मैं फर्स्ट को मतलब फॉर सिंगल इनपुट देयर इज सिंगल आउटपुट, जैसे कि आपका जॉयस्टिक अगर होता है तो जॉयस्टिक में ये जो स्फेरिकल पेयर होता है, अगर हम जो बाइक हमारी होती है, बाइक का जो ये हमारा हैंडल होता है ऐसा, राइट, इस टाइप का हैंडल होता है, और यहाँ पर ऐसे मिरर होता है, राइट, इसके ऊपर ये रहता है, हम इसको रोटेट करते हैं, तो ये जो मिरर का जो पीछे वाला पार्ट होता है और इसके साथ जो ये लगा होता है, इसके बीच में बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है, अगर आपने देखा होगा तो, ध्यान दिया होगा तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं। तो इस फर्स्ट जो था ये अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ रिलेटिव मोशन हो गया। नाउ द सेकेंड टाइप इज अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट बिटवीन, किसके बीच में कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू एलिमेंट्स जो रहेंगे। सो द फर्स्ट इज लोअर पेयर, lower pair means surface contact, simple, lower pair means surface contact, there is an area contact, we can say area contact। so इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, टर्निंग पेयर, जो फर्स्ट है हमारा टर्निंग पेयर पे देखो जी, ये वाला पार्ट होता है, ये सरफेस, यहाँ पर एरिया कांटेक्ट हो गया, टर्निंग पेयर। स्लाइडिंग पेयर, स्लाइडिंग पेयर में तो सबसे ज़्यादा सरफेस कांटेक्ट होगा, राइट। स्क्रू पेयर, स्क्रू पेयर में भी सरफेस कांटेक्ट होता है, ठीक है। सेकेंड इज हायर पेयर, ये जस्ट कॉन्टैक्ट के ऊपर है तो इसमें ज़्यादा कुछ समझाने की जरूरत नहीं। हायर पेयर में आइदर पॉइंट और लाइन कॉन्टैक्ट, तो इसका एग्जांपल कैसे दे सकते हैं, अगर जितने हमने पेड़ पर, रोलिंग पेयर, रोलिंग पेयर में पॉइंट कॉन्टैक्ट होता है अगर बॉल है तो, और अगर सिलेंडर है तो लाइन कॉन्टैक्ट। स्फेरिकल पेयर जो हमने पढ़ा वहाँ पर तो पॉइंट कॉन्टैक्ट है, सो स्फेरिकल पेयर। एक और टाइप का होता है रैपिंग पेयर। Wrapping pair, in wrapping pair, when one link is wrapped over the other link, the contact between the link is at multiple points. So here multiple point contact, okay, so यहाँ पर belt and pulley का best example है, belt and pulley। but let's say in a question अगर ऐसा पूछ दिया जाए, belt and pulley is a type of which type of, a belt and pulley is a type of, first one is lower pair, second one is wrapping pair, third one is lower pair and wrapping pair, and fourth one is none। so आप किसको टिक करेंगे, we will tick wrapping pair। it is wrapping pair is also a type of higher pair, we can say, but it is a specific type, ठीक है। all we can say all wrapping pairs are higher pair but all higher pairs are not wrapping pair, समझ रहे हैं ना, वो वाला जो एक लाइन होती है। so इसलिए यहाँ पर रैपिंग पेयर अगर ऑप्शंस में है तो ठीक है, नहीं है तो फिर क्या ही कर सकते हैं, राइट। नाउ एक और फंडा होता है कि हम ऐसा बोला जाता है कि वन हायर पेयर इज इक्विवेलेंट टू टू लोअर पेयर। अब इसका एग्जाम्पल कैसे दे सकते हैं, कैम एंड फॉलोअर में अगर ये सिस्टम है, ओके, दिस, अब यहाँ लिंक देना चाहे तो दिस इज योर लिंक 1 स्टेशनरी, दिस इज लिंक 2 एंड दिस इज लिंक 3, वी कैन से। यहाँ पर ये वाला पार्ट लोअर पेयर है, राइट, एरिया कॉन्टैक्ट है, यहाँ पर ये एरिया कॉन्टैक्ट है, दिस पॉइंट इज, यहाँ पर पॉइंट कॉन्टैक्ट है, सो ये हायर पेयर है, राइट। अब ये यहाँ पर पिन जॉइंट है,
तो टर्निंग पेयर, तो ये भी लोअर पेयर हो गया। नाउ वी कैन रिप्लेस इट बाय पूरे को, तो यहाँ पर नंबर ऑफ पेयर्स देखते हैं हम पूरे को, अगर इसी मोशन को हमें देखना है। सो हियर इज अ सिलेंडर, okay, and it will rotate in this direction or straight. प्रॉपर कैम मोशन चाहिए तो ये यहाँ पे आ जाएगा, एंड इट विल रोटेट समथिंग लाइक दिस। ओके, सो ये भी यहाँ पर क्या होगा, ये पिन जॉइंट है लोअर पेयर, राइट, लोअर पेयर 1, ये भी पिन जॉइंट है लोअर पेयर 2, this is also pin joint lower pair 3, this is also a lower pair 4. so we can say यहाँ पर lower pair कितने थे, 1 2 and 1 higher pair, right, but यहाँ पर एक higher pair को eliminate करने के लिए 2 lower pair आ गए। so हम बोल सकते हैं 1 higher pair is replaced by 2 lower pair और 1 higher pair is equivalent to 2 lower pair। now हमने on the basis of दो चीज़ों के बेसिस पे देख लिया, फर्स्ट वन इज रिलेटिव मोशन, सेकंड वन इज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, थर्ड इज ऑन द बेसिस ऑफ type of closure. So how the contact is made between the two system, is it forcefully or not? So देखते हैं, फर्स्ट वन इज टाइप होता है सेल्फ क्लोज्ड और ओनली क्लोज्ड पेयर। सो इसके एग्जांपल हैं, फर्स्ट वन इज पिन जॉइंट और वी कैन से टर्निंग पेयर, सेकेंड वन इज स्लाइडिंग पेयर, यू डू नॉट हैव टू अप्लाई द फोर्स, राइट, वो अपने आप अगर छोड़ भी देंगे तो वो कॉन्टैक्ट में है। थर्ड वन इज रोलिंग पेयर। सो ये कुछ एग्जांपल्स हैं इसके। सेकंड इज फोर्स्ड क्लोज्ड पेयर, फोर्स क्लोज्ड पेयर, और वी कैन से ओपन पेयर। ओपन मीन्स देयर इज कॉन्टैक्ट बट द कॉन्टैक्ट इज मेड फोर्सफुली। सो इसमें होता है जैसे डोर क्लोजर, राइट, इन डोर क्लोजर इफ यू हैव ऑब्जर्व we are using some force like spring system to close the door, right, जो ऑफिसेस में डोर होते हैं we open it and it automatically close हो जाता है, बट वहाँ पर जो ऑटोमेटिक क्लोजर आता है वो किसी कारण, तो स्प्रिंग फोर्स होता है उसी कारण आता है। ऑटोमेटिक क्लच सिस्टम, जो क्लच सिस्टम होता है वहाँ पर क्लोजर कैसे आता है, वहाँ पर भी स्प्रिंग का यूज होता है। ओके, जो हायर पेयरिंग कैम एंड फॉलोअर होता है वहाँ पर भी अगर इस वाले सिस्टम में देखें, सो यहाँ पर ऊपर के साइड से यहाँ पर स्प्रिंग होता है लगा हुआ, ओके, ताकि ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, अगर स्प्रिंग नहीं होगा तो ये ऊपर चला जाएगा और यहाँ पर कोई पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ही नहीं होगा। सो देयर इज नो रिलेटिव मोशन एंड द पेयर रहेगा ही नहीं, बाकी नहीं रहेगा। तो ये तीन टाइप हो गए। एक और टाइप है नहीं तीन टाइप ही हैं ना। ये एक जो जॉइंट्स होते हैं, जो जॉइंट्स होते हैं हमारे वो कुछ डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। ये टॉपिक खत्म हो गया, तीन टाइप में हम डिफाइन करते हैं इसको। ओके, नॉट जॉइंट्स ये क्या होते हैं, फर्स्ट वन इज बाइनरी जॉइंट और बाइनरी पेयर, सॉरी दिस वन इज ऑल्सो टाइप बाइनरी जॉइंट और पेयर। तो बाइनरी मीन्स दो ही रहेंगे ऐसे पार्ट, ओके, द जॉइंट बिटवीन व्हेन टू लिंक्स आर कनेक्टेड, ओनली टू लिंक्स आर कनेक्टेड, ओके, टू। इसका बेस्ट एग्जांपल है ये सिस्टम, ओके। सेकेंड वन इज टर्नरी लिंक। यहां पर तीन होते हैं पार्ट एक साथ, ठीक है, 1 2 and 3। सो ये जॉइंट और पेयर वी कैन से। सो व्हेन 3 लिंक्स आर इन कॉन्टैक्ट, सो इस केस में अगर हम पेयर बनाए तो पेयर कैसे बनेगा, 1 and 2 का, यहाँ पर इसको 1 दो इसको 2 दो, 1 and 2 का। यहाँ पर कैसे पेयर बनेगा, 1 2 2 and 3, राइट, और वी कैन से 1 and 3। अब इसमें देखिए, इफ वी टेक 1 and 2 and 2 and 3, सो देन वी कैन ड्रॉ ऑल 3 पेयर, राइट। अगर मैं यहाँ पर 1 and 3 ना लिखूँ यहाँ पर और मैं बोलूँ सिर्फ 1 and 2, तो 1 and 2 बना दिया, 1 and 3 बना दिया, तो ये वाला पेयर बन गया ना। वी डू नॉट हैव टू राइट 1 and 3, राइट। सो इन केस ऑफ टर्नरी जॉइंट, one pair is always dependent on the other two. तो here we can say 1 and 3 is dependent on
1 and 2 और 2 and 3, और 1 and 2 इज डिपेंडेंट ऑन 2 3 और 1 and 3, मतलब डिपेंडेंट है। सो हम बोल सकते हैं कि वन टर्नरी लिंक कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय और कैन बी इक्विवेलेंट टू 2 बाइनरी जॉइंट, राइट। क्योंकि यहाँ पर हमें जब रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो भाई मुझे जरूरत ही नहीं है थर्ड वाले की, सिर्फ मैं दो से ही रिप्रेजेंट कर सकता हूँ टर्नरी लिंक को। दो बाइनरी पेयर से मैं एक टर्नरी लिंक को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ या टर्नरी पेयर को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। सो इसलिए इसको टर्नरी जॉइंट बोलते हैं, टर्नरी लिंक नहीं, यहाँ पर टर्नरी जॉइंट। ओके, द थर्ड पार्ट इज क्वाटरनरी जॉइंट। सो ये सारी चीजें काम आएंगी बाद में नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, सो इन क्वाटरनरी क्या होगा, क्वार्टर मतलब 4, 1 2 3 and 4। सो हेयर 4 लिंक्स आर इन्वॉल्व, 4 लिंक्स आर कनेक्टेड और इन्वॉल्व। सो अगर मैं इसको बाइनरी पेयर के टर्म्स में लिखना चाहूँ, बाइनरी पेयर, सो हाउ मेनी बाइनरी पेयर्स आर रिक्वायर्ड। अगर मैं ऐसे पहले लिखना चाहूँ 1 2 1 3 2 3 1 4 2 4 and 3 4, कोई 4 1 मत लिख लेना क्योंकि 4 1 ऑलरेडी इज देयर। ओके, नाउ सेलेक्ट एनी 3। सो अगर मैं 1 2 सिर्फ 1 2 को सेलेक्ट करते हैं, लेट्स से फर्स्ट 1 2, सो 1 and 2, नाउ 1 3, 1 and 3 and थर्ड वन इज 1 4, 1 and 4। सो 1 2 अगेन 1 3 and अगेन 1 and 4, ये तीनों ने मिलकर ही मेरा काम कर दिया। और फिर और कुछ सेलेक्ट करते हैं 1 2 2 3 and 3 4। सो ओनली 3 ना। यहाँ पर सिमिलरली अगर हम ऊपर के तेर से ऊपर के हिसाब से देखें तो 1 क्वाटरनरी जॉइंट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय 3 बाइनरी जॉइंट। सो आपको बाद में आएगा ऐसा कि एक हाइयर पेयर की जगह पर एक हाइयर पेयर है तो उसको मैं 2 लोअर पेयर ले सकता हूं। ओके, 2 लोअर पेयर्स। एक टर्नरी जॉइंट है तो उसको मैं 2 बाइनरी जॉइंट ले सकता हूं। एक क्वाटरनरी जॉइंट है तो उसको मैं 3 बाइनरी जॉइंट ले सकता हूं। सो इस लेक्चर में हमने सिर्फ बहुत बेसिक चीज़ें पढ़ी। फर्स्ट हमने लिंक्स की डेफिनेशन पढ़ी। ओके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिंक्स देखे, देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेयर देखे जिनको हम काइनेमेटिक पेयर कह सकते हैं, और ये लेक्चर यहाँ पर खत्म करते हैं। ओके, इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डिग्री ऑफ फ्रीडम, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो काइनेमेटिक चेन इज़ अ वेरी बेसिक टॉपिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। और इसको ऐसे ही मत समझिएगा क्योंकि ये मतलब स्कोरिंग सब टॉपिक है, एक बार आपने पढ़ लिया तो याद हो जाएगा, तो फिर उसके बाद आपको दिक्कत नहीं होगी। तो थोड़ा सा बस ध्यान दे दीजिए, और टॉपिक बहुत ईजी है, आप आराम से समझ जाएंगे। ओके, सो टेक केयर एंड बाय।